हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सभी को एंड आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी 1 बज रहे हैं टू बी एग्ज़ैक्ट एंड आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आईआईसीटी दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी से कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे बूट कैंप पे विज़िट करने के लिए फॉर एजुकेशनल पर्पस। हमें उनको दिखाना है कि एक बूट कैंप में डे टू डे ऑपरेशंस कैसे होते हैं। हमें उन्हें एजुकेट करना है अबाउट ई-स्पोर्ट्स एंड गेमिंग, व्हाट इज़ द करियर इन द गेम। तो आईआईसीटी से कुछ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आ रहे हैं बूट कैंप पे। अभी आपने रिसेंटली सुना ही होगा कि गवर्नमेंट ने ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में अनाउंसमेंट की थी रिसेंटली। तो उसी इनिशिएटिव को हम एक स्टेप आगे लेके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो मेरे साथ तपस्या भी है, तो हम मिल के बूट कैंप पहुँचते हैं एंड वहाँ पे चल के आपको सारी चीज़ें बताते हैं। बाइक से जा रहा हूँ ऑफिस, बट आज मेरे साथ तपस्या भी है। हेलो तपस्या, से हाय। आर यू एक्साइटेड? आईआईसीटी से लोग आ रहे हैं आज, है ना? ये गूंगी है, इसके मौन व्रत चल रहा है इसका। ये बोलेगी नहीं, और अगर बोल ली तो समझ लो मिरेकल हो गया है। आई हैव जस्ट रीच बूट कैंप एंड हमारे साथ आईआईसीटी के स्टूडेंट्स हैं। तो गाइस आप लोग अपना इंट्रो दे दीजिए एक बार कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट आर यू गाइस परस्यूइंग वन बाय वन। Yes, starting from you. I'm Anurag. I am currently a student at IICT pursuing the esports and gaming management, where gaming management will be my specialization. So basically, like understanding the business of games, how they make revenue, the game fundamentals, how a game is built, the genres that are there, how do you target the right market, understand the right audience for your game, and the monetization aspects of it, and yeah, everything from the product market to the business aspects. That is what you are learning at IICT from a gaming management perspective. Right. Hello, my name is Abhimanyu. I'm a student at IICT. As Anurag said earlier, on the same course as him, which is esports and gaming management. I would be pursuing my specialization in esports. I would be involving myself based in the front end, back end operations, as well as merchandising, logistics, management, uh, and other aspects of the esports ecosystem, engaging with people, engaging with investors, engaging with brands, engaging with government bodies in the future as well. And my role would mostly cover the management, operations, and logistics aspect. Thank you. Hi, myself Tanesh. I'm a game developer from IICT. I'm under Ajay sir's team. Ajay sir has contacted Mr. Hussain over here and through this has facilitated this meeting at Jitsu Bootcamp. And I'm coordinating these guys today at the bootcamp. So I would like to ask one question. How do you find this government initiative all about, developing esports and gaming from a grassroots level and then IICT taking that initiative to the next level and then So I would like to say that when the government is backing a certain has come up with a concrete policy around, expanding each of these verticals of AVGC, mixed reality also. So when the government is formally involved, you have a clear structure, a roadmap, a huge entity backing you. So that helps. And now there's particularly from the gaming perspective, having IICT to train you with a formal curriculum with experienced teachers, that helps a lot. And particularly for gaming, which is new, as a course to pursue, having IICT and such experienced teachers to streamline a lot of things is very helpful. And plus, we're getting to learn a lot of curriculum that is, you know, uh, uh, what I would say is very up to date with the current trends. And we're getting to interact with a lot of startups, uh, learn from their life experiences. We're not learning from something that's happened 10 years ago. So, like, we are here, like, esports is one of our modules in the course, and we are here at Zutsu to learn from people who have been there, done that. So, that's how we are learning here at IICT. that's great. That's great. And how do you enjoying the space here?
The ambience of this place is like we're at a villa or a bungalow. So I think, yeah, if you We'll if go you outside also. yeah, We'll head go out, outside also. you'll get a actual glimpse of the scenery outside. Yes, yes, yes. So abhi we'll have a quick Q&A session with the team and with the players, and then after that I'll give you a feedback as well about from them side as well and from our side as well. rivalry as in लड़ाई मतलब तो होती रहती है cause Say most of jealousy factors essentially. If someone is better at you, of course there'll be some jealousy involved. If someone gets nominated as IGL, अगर आपके spot को कोई मतलब there's another nomination probably internal. So what emotions, what feelings would be involved? see How do you combat that, or how do you support that sort of thing? जब न्यू टीम बनती है देन अर्ली स्टेजेस में ऐसे फैक्टर आ सकते हैं कि न्यू प्लेयर्स हैं जस्ट मर्ज जो है वो एक दूसरे को कि कोई ज़्यादा अच्छा खेल रहा है कोई ज़्यादा खराब खेल रहा है तो वो जेलसी फैक्टर रहता है बट बाय टाइम जो कि T1 सिनेरियो में होता है एकदम जो अभी है जैसे हमारी टीम है या मल्टीपल हाई लेवल की जो टीम है उनमें ये रहता है कि बाय टाइम दे लर्न कि एट द एंड इट्स अ टीम गेम तो हर एक प्लेयर को अपने बेस्ट पे खेलना इज इम्पोर्टेंट अब आई नो कि कोई मेरे से बेटर खेल रहा है मेरा काम ये है कि हाउ कैन आई यूज हिम टू सिक्योर दैट विक्ट्री दैट्स इट मतलब स्टार्टिंग स्टेज में होता है बहुत जेलेसी लड़ाइयाँ बहुत दिक्कतें आती हैं बट बाय टाइम अगर तुम्हें सक्सेसफुल बनना है स्पोर्ट्स में तो यू हैव टू वर्क टुगेदर इससे स्टेम करके मैं एक अनदर क्वेश्चन पे आता हूँ जैसे आपने बोला कि you can use that sort of frustration and rivalry and even target it towards a common goal, towards a win. But wouldn't developing that sort of anger aspect be unique to that person's personal brand? Whose development aspect of it can be helpful for them. For example, someone is a angry person on the external, but internally he's a skilled player. That's something that could be unique to his character. So something along the lines of that. For character development, for characteristic development, or essentially setting up for his own personal brand. As a certain that coaches are in here who help you basically develop your character, personal branding wise, maybe and team branding wise. So मैं थोड़ा personal aspect पे आता हूँ. So how is that nurtured? मोस्टली तो कोच का ही वर्क रहता है ये तो स्ट्रीमलाइन की हर एक प्लेयर कैसे एक दूसरे से सिंक इन कर रहा है प्लस अपना गेम प्ले किस मतलब जैसे आप बोल रहे हैं एंगर या जो भी कोई इमोशन लेके चल रहा है तो ये मोस्टली कोच पे आता है एंड मे बी आईजीएल पे आता है कि अब मैं अपना छोड़ के अगर जैसे प्लेयर है तो उनका कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ But at the end, it's a part of every player's individual role as well कि उनको एज अ मेच्योर पर्सन चीज़ें हैंडल भी करनी आनी चाहिए कि इफ एनी सिचुएशन अराइज तो दे शुड ऑल्सो बी एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ इट अगर मैं आज ऐसा एक्ट करता हूँ या फिर आई कीप द जेलेसी पार्ट इन मी अगर मैं उस चीज़ को क्लियर नहीं करता हूँ तो वो चीज़ आगे जाके टीम पे भी इफेक्ट करेगी एंड देन एट द एंड टीम गेम पे इफेक्ट करेगा तो इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल मैच्योरिटी एंड पर्सनैलिटी एज वेल कि हाउ यू कैरी आउट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ टीम एंड हाउ यू पोर्ट्रे एंड हाउ यू अपने आप को आप कैसे सेटिस्फाई करते हो एंड टीम को कैसे एक पॉइंट पे लाके डिस्कशन को एंड करते हो टू नॉट हैव एनी ओपन ग्राउंड्स लेफ्ट और कोई चीज़ें छूट ना रही हो एंड वो उसके लिए कोच हमेशा अवेलेबल है कोच इज़ 24/7 अवेलेबल टू फॉर प्लेयर्स टू आस्क एनीथिंग कि अपार्ट फ्रॉम गेम ऑल्सो कि ये मुझे फील हो रहा है इसके साथ ऐसा फील हो रहा है तो कोच इज़ देयर टू हैंडल दैट पार्ट ऑल्सो एज वेल एंड अगर कुछ प्रॉब्लम फिर भी रह जाती है तो इट्स अ प्लेयर प्रॉब्लम आई वुड से on the sentence part ki it's a player problem he is not able to express his emotion and express his whatever he's feeling and whatever is there in his mind of course responsibility rehti hai IGL and coach ki bhi ki to understand what they are feeling try to understand what they are feeling but at the end एक player की भी responsibility रहती है कि मैं क्या feel कर रहा हूँ मैं portray करूँ अगर या तो मैं और को portrait करूँ या तो मैं team को portrait करूँ या मैं try करूँ उस चीज़ का solution निकालने So it's safe to say कि IGL like in game में सब लीड करता है बट बाहर भी आउटसाइड ऑफ गेमिंग भी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है टुवर्ड्स हिज प्लेयर्स सबको साथ लेके चलना पड़ता है गेम के बाहर भी अगर कोई
अलग आइसोलेट हो रहे हैं या ज़्यादा ही अलोन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो एट द एंड टीम के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट रहती है, पर्सनल टाइम होता है सबका अपना अपना, बट एट द एंड सेम टाइम पे टीम टीम टाइम भी होना चाहिए आउटसाइड गेम, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है। So like जैसे बताया आपने कि 12 hours like minimum 12 to 11 hours स्क्रीन टाइम तो होता है, तो उसके अलावा फिर आप कुछ ऐसा एक्टिविटी उसके अलावा एक्टिविटी फिजिकल रह सकती है, लाइक प्लेइंग आउटडोर गेम, बैडमिंटन खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, या जस्ट बाहर बैठ गए साथ में चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, डाइट कोक पी रहे हैं, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ रहती है। मतलब आराम करने के लिए या थोड़ा सा chill। इतने छोटे से आप टाइम पे आपने इतना बड़ा ऑडियंस क्रिएट लाइक फॉर ऐसे टाइम पे बड़ा ऑडियंस बहुत सारे लोग बनेंगे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि Hmm. देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु आर अहेड ऑफ यू इन द रेस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ मैराथन, आपको चलते रहना है यार। मतलब बेस्ट पार्ट इज कि नाउ आई लुक बैक, एक साल पहले मैं देखता हूँ तो मैंने आज 50 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम कंप्लीट कर दिए। इट वाज अ बिग ड्रीम। मैंने जब 30 के कंप्लीट किए थे तो मैं आई कैसे 30 साल हो गए, मतलब आई नेवर थॉट आज 50 साल हो गया, आई एम फोकसिंग कि मैं 100 के तक जाऊंगा। तो यू नीड टू कीप इवॉल्विंग, यू नीड टू कीप मूविंग। आप जब भी पीछे मुड़ते, इट्स लाइक लाइफ, आप जब भी अपने 3 साल पुरानी फोटो देखो यार मैं कैसा चूतिया दिखता था, अगले 3 साल बाद आज की फोटो वैसी दिखेगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नीड टू कीप इवॉल्विंग। Guys, I think we had a really good day. But tell me your experience कि आप लोगों को कैसा लगा? You know, I guess you guys have experienced the physical boot camp field with it like first time in your particular career as well. What would you like to say about the experience? so boot camp was a really like a different experience. Like usually कोई कोई जगह पे गेमिंग बूट कैंप्स में वेरी कॉर्पोरेट स्टाइल होता है एंड ऐसा मैनेजमेंट एंड ये प्लेयर्स का साथ साथ में रहता है, वेरी डिफरेंट वाइब। बट यहाँ पे इट्स लाइक अ फैसिलिटी जहाँ पे क्रिएट करते हैं माइंड्स को एंड ट्रेन देम, गिव देम द सप्लाईज दे नीड, द अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेन देम आगे जाने के लिए। एंड ऑल्सो कि सिर्फ मैनेजमेंट नहीं बट ऑल्सो द ब्रांड एक्सपेक्ट कि कैसे ब्रांड को प्रिंट का बनाना है, क्रिएट करना है, आगे कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज डालना है, उनके आगे गेमिंग करियर को कैसे फोकस करना है एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करना है नए नए इवेंट्स पर जाके। सो दैट्स बीन क्वाइट एनलाइटनिंग। Yes, it was really good, lovely meeting you guys as well. And it's a place whenever you wanna, have a visit anytime in near future, you can. Thank you, that's Anytime. Yes. तो गाइज आज का डे खत्म होता है बूट कैंप पे एंड यस या इट वाज अ गुड डे। लोगों से मिलके मज़ा आया एंड अपनी टीम भी घर जा रही है। देयर इज़ अ टीम भी घर जा रही है, हम भी घर को निकल रहे हैं। घर पहुंचता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।